screen, okay? Good morning, everybody. So, as we all know that we are celebrating the breastfeeding week this week, and under that, our AOGD outreach team, with blessings of our President Foxy, Dr. S. Shanta Kumari, Secretary Dr. Madhuri Patel, Sneha Boyar ma'am, who is the chairperson for the Female Breast Committee, and President AOGD Dr. Ashla Batra, who is also there with us today with her blessings. We welcome you all on behalf of Composite Hospital National Security Guard, and we are very pleased and honored to have you all here for this awareness panels discussion today. And with this, I welcome Dr. Anita Sabharwal ma'am, who is the in charge for conducting today's program as the executive member of the AOGD Outreach Committee. So a very warm welcome, Dr. Neeta ma'am, and I would request you to please take over and get on with the proceedings of the session. Thank you. Thank you. Thank you, Dr. Amrapali. It's rather a great honor and a proud privilege on behalf of our Association of Obstetricians and Gynecologists of Delhi, being part of the outreach team. And also FOXY, which is the Federation of our Obstetrical and Gynecological Societies of India, that today we are here and associated with the very, very prestigious Association of Security Guards of India. So especially we are here today to speak on a very, very important topic of breastfeeding, celebrating Breastfeeding Week. And this is a great honor because you people, the guards, the soldiers of a country, you are really, I think you form the topmost part of our country, because our country is secured and protected by you. And especially now we are having about to have our Independence Day. So, you know, we remember you all as soldiers, that we think that our desh, our country is all because of you. So ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, और ये हमारे सब सिपाही हमारे देश के गहना हैं. So we also have the responsibility to be here with you and to talk something good for your families, for the benefit of your children. So especially for this breastfeeding celebration, we wanted to be associated with you, and all under the guidance of our President AOGD, Dr. Ashla Batra. So I think we have a great soldier here with us, Dr. Vivek Mathur, who is the officiating Deputy Inspector General here. And so I will request sir to say a few words before we go on to the program. Dr. Vivek Mathur, sir, please say a few things. Ji ma'am, am I audible? Ma'am, are we audible? Hello. Yes, yes, yes. Okay, ma'am. First of all, I congratulate you, both of you, your team, and we are grateful on behalf of NSG. I would like to thank ma'am. And the introduction given by Dr. Amrapali is a temporary that I am officiating, but my original introduction is I am alumni of Kanpur Medical College, from where your Dr. Manu Bhatnagar ma'am is from Kanpur. She is my Okay. Right. she's the 1980 batch, and I am 87 batch ma'am from Kanpur Medical College. Right, sir. Then ma'am, I did my PG in sports medicine, and then I did my PhD in sports medicine from Amritsar. And right now, ma'am, I am in NSG for last 5 years, and I always encourage, ma'am. Last year we planned to have a proper seminar on the breast cancer and awareness just before the COVID lockdown. And because of the COVID lockdown, we were not able to conduct it. And this year also we wanted to do something, but COVID restrictions has compelled us for this webinar only. And I'm sure that after once COVID this crisis is over, and we would like to have a one-to-one seminar and some lecture on different topic under your leadership, ma'am. And once again, ma'am, thank you very much, sir, that I can say, ma'am. And thank you very much, ma'am.
Thank you, sir. Thank you so much. And, you know, especially you talked about Dr. Manu Bhatnagar and the CRPF. We had been really working a lot, and I think you were part of it. So we've been working for the last 3 years continuously. And so we all feel we are family with you people. So that's why I requested Dr. Amrapali that, and I requested our President AOGD that we must, you know, do this program, especially of breastfeeding with you people. So thank you so much for associating, and in future also. We will plan Yes, something. Ma'am is coming back to Delhi. Right now yes, she's in JNK and yes, talked 2 days back. So we will yes, plan something. This was the compulsion. Right now our troops are busy Independence Day deployment and preparation. So this is the compulsion of the first week only. Otherwise, after this Independence Day, after 15th August, we will plan something right. in meticulous way. Ma'am. Okay, sir. Okay, sir. Thank you so much. Sir, before I go on, I will request Shivam that our Vice President Foxy, Dr. Archana Verma is calling me. She needs faculty link at her phone number. If you could please send it, Mr. Sure. Shivam. Okay, ma'am. She faculty link. Yeah. So thank you so much, Vivek sir. It's really great associating with you. और कहते हैं ना, प्यार दुनिया का सबसे खूबसूरत एहसास है, बहुत सुखद है, बहुत सुंदर है, बहुत सलोना है, और खास करके ये माँ और बच्चे के बीच का जो प्यार है, ये सबसे ही सलोना एहसास है। एंड शिशु के लिए स्तनपान सर्वोत्तम आहार है, और ये शिशु का मौलिक अधिकार है, शिशु के विकास के लिए, स्वास्थ्य के लिए, और उसको रोगों से लड़ने के लिए प्रतिरोधक क्षमता भी ये बढ़ाता है। सो इसीलिए आज भी हम सब इकट्ठे हैं भारत देश में ब्रेस्ट फीडिंग को प्रमोट करने के लिए और सपोर्ट करने के लिए। तो उसके लिए हमारे आज प्रेसिडेंट एओजीडी प्रेजेंट हैं, डॉक्टर अचला बत्रा, और ये बहुत, शी इज सच अ जेम ऑफ अ पर्सन, वन ऑफ द बेस्ट जेम्स एंड जूल्स इन द फील्ड ऑफ ऑब्स एंड गायनी, एंड वन ऑफ द बेस्ट डॉक्टर्स ऑफ अ कंट्री, बिकॉज ये सबके लिए काम करती है, एंड शी वांट्स टू रीच द सोसाइटी. दैट इज व्हाई शी हैज स्पेशली मेड अ सोसाइटी, अ कमिटी व्हिच इज कॉल्ड आउटरीच कमिटी, सो दैट we are able to reach the public. क्योंकि हम सब पढ़ते तो हैं, knowledge भी लेते हैं, but ultimately it's for the public, and especially for now today breastfeeding. Why? Because hardly 44% people are using this exclusive breastfeeding. So that is why Madam Dr. Achla has, this was a project to have this outreach committee. So now I will request Dr. Achla. Can I, Shivam, could I again project the screen? Yes, ma'am. You need to share. Again, I will have to. Okay. So It's okay, Anita. It's fine. yeah. No, for let ma'am, we all know you, but people who are here with us, they will like to know you also. So yes. So Dr. Achla is the president of AOGD, and she has been the president of National Association of Reproductive Health and Child Health of India also, and she did a great work during her tenure, and chairperson of various other health committees, has been having a lot of official positions in various associations, a great teacher, and as I just introduced her, the person who wants to reach the public. So I will request Dr. Achla to say a few words. Dr. Achla, please. Namaskar. Good morning. I first want to know whom am I addressing. Should I be talking in Hindi or in English? Mixture. Dr. Amrapali is representing our energy on behalf of Ma'am, Amrapali. we'll have Jawan's wives and normal people. So if we can have it partially in Hindi, that would be better. Yes. धन्यवाद. तो मैं आभारी हूँ आपकी डॉक्टर विवेक माथुर एंड डॉक्टर आम्रपाली कि आपने हमें मौका दिया कि हम जवानों तक पहुँच पाएं. हम ये क्यों करना चाहते हैं ब्रेस्ट फीडिंग की प्रमोशन? इसलिए करना चाहते हैं कि जो स्टैटिस्टिक्स दिखाता है कि अभी भी, जैसे अनीता जी ने कहा, कि हम चाहते हैं कि पहले घंटे के अंदर ही बच्चा माँ का दूध पी ले, पर ये नहीं होता. सिर्फ 40-45% लोग ऐसा करते हैं. क्यों? क्योंकि उनको पता नहीं है कि इस पहले घंटे में दूध पिलाने के कितने फायदे हैं. दूसरा, सिर्फ 55% लोग हैं जो कि 6 महीने तक सिर्फ दूध पिलाते हैं और चीजें नहीं खिलाते, जिसके
अनेक फायदे हैं, पर उनको नहीं पता कि क्या फायदे हैं, इसलिए वो बहुत जल्दी ही दूसरी चीजें खिलाना शुरू कर देते हैं। और इसके अलावा भी स्तनपान कराने के माँ को, बच्चे को क्या फायदे हैं और उनका इससे स्वास्थ्य पे क्या असर पड़ता है, ये सब चीजें हम आपके आज के वेबिनार में सब लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। और आशा करते हैं कि ये सब सुनने के बाद इनको समझ आएगा कि इनको ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में क्या करना है। थैंक यू। आई थिंक वी शुड गो ऑन विद, अब हमको Yes, शुरू कर yes. देना चाहिए अपना। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू डॉक्टर अर्चला, एंड वी आर वेरी हैप्पी एंड ब्लेस्ड दैट टुडे वी आल्सो हैव द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ फॉक्सी, डॉक्टर अर्चना वर्मा, who has just joined. Dr. Archana Verma, we can't see you. Yeah. So Dr. Archana Verma, can we please आप अपना वीडियो ऑन कर लीजिए. Yeah, welcome Dr. Archana Verma. She is, you know, a person, she's vice president of Foxy, and she has been working for the awareness. She was the chairperson of the awareness committee of Foxy. So that is how I know her so well. And as Dr. Vivek Mathur mentioned about CRPF, so I worked along with Dr. Archana Verma only for the CRPF. That's how we all know you. So she has a passion to really reach the public. So she wants to create awareness on women health all over. So she's such a dynamic and a sparkling person with us, who's always promoting us. And I'm so happy that she's given us time to be here with us, especially for the हमारे soldiers के लिए, हमारे जवानों के लिए. So this is the National Security Guards Composite Hospital today. वो सब जवान हैं, उनकी families हैं. तो डॉक्टर अर्चना प्लीज, बिफोर हम अपना पैनल डिस्कशन शुरू करें, आप प्लीज कुछ शब्द बोलिए. डॉक्टर अर्चना प्लीज. Thank you, Dr. Anita Sabharwal. And this Delhi Society actually and the AOGD always is one of my very close to me as in NCR. And nowadays, Dr. Achla Batra is doing wonderful work, and we are so proud to be associated with AOGD. And I wish all the best. And regarding the breastfeeding program, we all know that this is the Prime Minister's initiative also, and our goal is to reach to even by the community programs and with all the trained skilled workers also, and all the professionals and all the organization, especially all the CRPF people, because we all know that breastfeeding makes the baby healthy and very strong. So we want all the CRPF families to this commitment with the they do also, they take a commitment to go for the complete breastfeeding, early breastfeeding. And we know that today only we got at least 3 very good messages from IPS, and one of them was none other than this Dr. Rajiv Rai, and one is from the UP Commissioner for that they are with us for the breastfeeding. And I'm so happy that Anita Sabharwal and Dr. Achla Batra is doing this great program and you all will be knowing all about the breastfeeding in this panel discussion. My best wishes. Thank you. And on this Independence Day also, we salute to all our especially all the people who take care of the India, and we are for you, and we want everything for you. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, Archana. Thank you very much for coming. Thank you so much. We are really very happy and heartened, so happy we are and motivated. So we will work more now with more vigor and vitality, and we all will be running. Thank you so much. So now we I might request Dr. Achla, आप जरूर सारा पूरा AOGD के साथ join करिएगा, and there'll be many surprises for you all also. Thank you very much. Thank you, Dr. Archana. So can we have the slides, or Mr. Shivam, I have to again share screen? You need to share. Share? Yeah. Okay. So we have a very nice panel discussion, and with me, we have today, 2 great panelists. You just heard the introduction of Dr. Achla Batra. She is on the panel with us. And we have Dr. Sujata Das. She is another panelist for this breastfeeding webinar. And she's the Chief Medical Officer at Safdarjung Hospital, MBBS DGO, FICOG. And she again has interest in prevention. And she is a very well decorated person with many awards
and publications to her credit. And she's a great friend. And then we both are going to moderate, myself and our dear Dr. Amrapali Dikshit, who is the chief, who's actually is in charge of this hospital of our security guards, National Security Guards, a very prestigious association, and at the Composite Hospital, Manesar. So today we are here all because of the efforts of Dr. Amrapali Dikshit, and she's always there with us for all the good causes. And she's an MS from Banaras Hindu University and is specialist here at the same hospital. And she also has, she's contributed to various publications in journals and chapters, and always very ready and eager to work for the community. So let's begin the session. And with Dr. Amrapali's permission, I will start with the first question. So that would be to our president. So that is why we have great people with us, so that the right message goes to the public today, and then they will be able to disseminate this right message about breastfeeding to hundreds of their family and friends. So that's why we have great people like Dr. Achla, who will be telling us now. So that why are we here together? So because there are lots of benefits of breastfeeding. So we will like to know from Ma'am Dr. Achla Batra, what are the benefits of breastfeeding to babies? Dr. Achla. अनीता, शिशु को माँ के दूध पीने से बहुत ज्यादा फायदे। सबसे पहले तो जैसे ही माँ और बच्चे का कंटैक्ट होता है पैदा होते ही, वो कंटैक्ट उनका जिंदगी भर बना रहता है। वो जो एक बॉन्डिंग होती है वो माँ का दूध पिलाने से ही होती है। और माँ का दूध एक संपूर्ण आहार है, उसके अंदर जो भी बच्चे को चाहिए सब है। तो उसका जो इम्यून सिस्टम, जो बीमारियों से लड़ने की शक्ति उसमें आती है माँ का दूध पीने से। उसका दिमाग याद, जो बच्चे 6 महीने तक सिर्फ माँ का दूध पीते हैं, ये देखा गया है कि वो ज्यादा ब्राइट होते हैं, उनका दिमाग ज्यादा होता है, और उनको ये बीमारियां जैसे मुंह में छाले हो जाना, गैस्ट्रोएंटेराइटिस जैसे डायरिया हो जाना, उल्टियां होना, ये सब नहीं होता है। और कान में जो कई बार बच्चों के कान वगैरह रहते हैं, तो ये सब चीजें बिल्कुल इनमें बहुत कम होती हैं। यही नहीं, इन बच्चों का वजन भी बड़े होके मोटे भी ज्यादा नहीं होते हैं, और इनको डायबिटीज, जिसको शुगर बोलते हैं, वो भी इनको कम होती है। और ये भी कहा जाता है कि कुछ तरह के कैंसर, जो कि ल्यूकीमिया और लिम्फोमा, ये भी इन बच्चों को अगर कम होते हैं बनिस्बत जो जनरल पॉपुलेशन होते हैं। तो कई बार ऐसा भी होता है कि कई बार हमने सुना है कि अरे बच्चा सोते सोते खत्म हो गया। तो ऐसी चीजें नहीं होती अगर बच्चा माँ का दूध पीता है। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि बच्चा माँ का दूध ही पिए। एक तो उसको एकदम से मिल जाता है, कुछ गरम नहीं करना पड़ता, बिल्कुल हाइजीनिक, आपको कुछ ध्यान नहीं रखना पड़ता कि ये कुछ इन्फेक्शन नहीं है। इसलिए सबसे अच्छी पैकिंग में बच्चे के लिए। थैंक यू डॉक्टर अचला। आपने बहुत ही अच्छे से बताया कि इतने ज्यादा इसके फायदे हैं, इतनी इसकी इम्पोर्टेंस है बच्चे के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, और उसकी बहुत सारी आगे के चल के उसको जो बड़े होके भी कितनी सारी छोटेपन में भी और बड़े होने पे भी बहुत सारी तकलीफों से ये बचाता है। तो वो माँ जो वेट कर रही है बच्चे के आने का इतना प्यार भरी नजरों से, प्यार भरे दिल से, तो उसको तुरंत ही अपनी छाती से उसको चिपका देना चाहिए और ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए, ताकि सारे उसको फायदे मिल जाए। तो अब अगला क्वेश्चन भी मेरा ये है कि माँ को भी तो बहुत सारे फायदे होंगे। डॉक्टर अचला, आप प्लीज अनम्यूट कर लीजिए, मैं आपको देख नहीं पा रही। डॉक्टर अचला, ओके। तो डॉक्टर सुजाता, अभी आप हमारे साथ हो, तो आप ही बताइए बच्चे के माँ को क्या फायदे होते हैं बच्चे के दूध के? माँ को Yes, ma'am. Am I audible? Yes, Dr. Sujata. Am I audible? Yes. Thank you so much. First of all, I would like to thank organizers, Dr. Anita ma'am, Dr. Ashla ma'am, and all the organizers for inviting us here. एक बहुत ही अच्छा फोरम है, एक बहुत ही अच्छा पैनल है, जिसके द्वारा हम ये बता सकते हैं कि बच्चे को क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं और माँ को क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं।
जहां तक माता उनका सवाल है जो दूध पिलाती हैं, एक बहुत ही अच्छा बॉन्ड जो है वो बच्चे के साथ पैदा होता है। दूसरी बात ये है कि जो यूट्रस है वो उसकी जो साइज है और जो शेप है उसको सिकोड़ने में, उसको कम करने में जो ब्रेस्ट फीडिंग है, जो स्तनपान है, उसका बहुत बहुत योगदान है। एक लंबे समय तक अगर माता कम से कम 6 महीने तक बच्चे को दूध पिलाती है तो बच्चे का जो वजन है वो सही रूप से बढ़ता है। माता का जो वजन है, अपना वजन है, जो प्रेगनेंसी के दौरान जो 10 से 12 किलो गेन किया था वो कम होता है। और जो ब्रेस्ट फीडिंग है, इससे जो है जो प्रोटेक्शन मिलती है माताओं को अगला गर्भ धारण करने के लिए, वो एक बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज है। अगर माता शुरू के 6 महीने तक ठीक से बच्चे को ब्रेस्ट फीड कर रही है तो इससे जो है उनको एक बचाव मिलता है अनचाहे गर्भ से, जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है। और जो रिस्क है जो आगे आने वाले समय में 50 वर्ष की आयु में या 60 वर्ष की आयु में जो ब्रेस्ट फीडिंग, जो ब्रेस्ट कैंसर्स हैं, जो कई लोगों को ये जो परेशानी होती है, इससे काफी हद तक प्रोटेक्शन या बचाव मिलता है उन माताओं को जो ब्रेस्ट फीड करा चुकी होती हैं। तो इसलिए न केवल स्तन कैंसर्स के लिए बल्कि बच्चेदानी के कैंसर के लिए भी एक बहुत बड़ा बचाव है। तो न सिर्फ शिशु को बल्कि माताओं को एक शॉर्ट टर्म, एक लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम में अगर हम देखें तो इसके कई फायदे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू डॉक्टर सुजाता, आपने बिल्कुल सही फरमाया कि माँ भी जब बच्चे को स्तनपान करती है रेगुलर तो उससे उनको भी बहुत फायदा होता है। एक तो बता ही दिया, बच्चेदानी भी अपनी जगह पर सही समय पर पहुंच जाती है और उसके अलावा उसका जो माँ का वजन भी बढ़ जाता है, वो भी ब्रेस्ट फीडिंग करने से वो भी कम हो जाता है, जो एक्स्ट्रा वजन होता है। और ऑल्सो क्योंकि इसमें अंडा जो है वो अंडे बनने की जो प्रक्रिया है वो भी इससे हॉल्ट हो जाती है। पर जो लेडीज 6 महीने लगातार बच्चे को एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग देती हैं, जिसका मतलब है कि 8 से 10 बार दिन में और रात को कम से कम 1 या 2 बार बच्चे को अपने स्तनपान कराएं, और उस 6 महीने के दौरान बच्चे को पानी तक कुछ भी नहीं देना ऊपर से, ना ऊपर का दूध ना पानी। और इसके अलावा माता को कोई भी मेंस्ट्रुअल फ्लो नहीं आना चाहिए, कुछ भी रक्तस्राव नहीं होना चाहिए, कोई पीरियड नहीं आना चाहिए उन 6 महीनों में। तो इस स्थिति में अगर वो ऐसे रहती है तो उसका 6 महीने इन 6 महीनों में कॉन्ट्रासेप्शन भी हो जाता है, फैमिली प्लानिंग भी हो जाता है, क्योंकि वे 6 महीनों में फिर वो माँ नहीं बन पाती। तो इसलिए उनको एक्स्ट्रा और कॉन्ट्रासेप्शन उस समय लेने की जरूरत नहीं पड़ती। अभी की ये 95% इफेक्टिव है, 5% फिर भी इसमें कुछ वो गलती खामी हो सकती है, पर फिर उनको उसके बाद जरूर अलग से कॉन्ट्रासेप्शन लेनी चाहिए। तो ये भी फायदे हैं। और आपने बताया कि कैंसर से बचाव है, ब्रेस्ट का, बच्चेदानी का, अंडकोश का, तो इन सब कैंसरों से भी बचाव है। तो क्यों नहीं माँ अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग देना चाहेगी। तो आज उनको ये मैसेज मिल गया कि उनके भी बहुत सारे फायदे होंगे। तो थैंक यू डॉक्टर सुजाता फॉर हाईलाइटिंग दीज। और इसके अलावा अब मैं डॉक्टर आम्रपाली को रिक्वेस्ट करूंगी कि वो आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे। डॉक्टर आम्रपाली। जी मैम। तो सुजाता मैम, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि बच्चे को क्या फायदे हैं, माँ को क्या फायदे हैं, बट ब्रेस्ट फीडिंग के, स्तनपान के बहुत सारे सोशियो इकोनॉमिक और फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस भी होते हैं कि किस तरह से वो एक सोशियो इकोनॉमिक इम्प्रूवमेंट, फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन, इन चीजों में हेल्प करता है। तो मैम आप थोड़ा सा उस पर हाईलाइट करें प्लीज। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस क्वेश्चन। जहां तक शिशु को और माताओं को इससे होने वाले फायदे हैं वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जहां तक सोशियो इकोनॉमिक बेनिफिट्स हैं वो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चीज है, बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। होता यह है कि जो माताएं जल्दी ही ये समझ लेती हैं कि मैं स्तनपान नहीं करा पाऊंगी, वो बाजार से मिलने वाले जो पदार्थ हैं जो बच्चों को ऊपर से दिए जा सकते हैं, जो पाउडर्ड मिल्क है, उनकी तरफ जाती हैं, जो कि उनके लिए काफी महंगा पड़ता है। कम से कम एक बॉक्स जो है 500 से 600 रुपए का आता है। इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। कई बार जो माताएं हैं उनको ये नहीं पता होता कि इस मिल्क को कैसे बनाना है, कैसे कॉन्स्टिट्यूट करना है। उसमें पानी की मात्रा अधिक होती है जिससे बच्चे को सही पोषण नहीं मिल पाता है, पूरा पोषण नहीं मिल पाता है।
या माताएं ये सोचती हैं कि चलिए इसको 1 महीने के बजाय 1.5 महीने चला लिया इस पाउडर्ड मिल्क को जो हमारे पास है। हो सकता है ऐसी कई चीजें होती हों जिसकी वजह से माताएं दूध ना पिला पाती हों, बट इन सब समस्याओं के समाधान के लिए बेहतर होगा कि वो डॉक्टर्स के पास आए, हॉस्पिटल में आए। इसके अलावा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो हम बात करने जा रहे हैं, जो माताएं स्तनपान कराती हैं उन बच्चों को इन्फेक्शन की संभावना बहुत कम होती है और उनका वजन जो है जो जिस एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट से बढ़ना चाहिए उसी तरह बढ़ता है। उनका जो मस्तिष्क का विकास है वो भी अधिक होता है, शारीरिक विकास है वो भी अधिक होता है। बीमारियों की संभावनाएं बहुत कम होती हैं क्योंकि दूध में बीमारियों से लड़ने की जो क्षमता है वो माता के दूध से बच्चे तक जाता है। तो ये कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं जिनके बारे में हमें देखना चाहिए। अगर शिशु कम बीमार पड़ेगा तो माता पिता को भी कम अस्पताल में जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि कई बार जाना पड़े, बहुत कम ऐसे चांसेस होंगे कि कभी अस्पताल में जाना पड़े, जिससे उनके लिए बेनिफिट्स हैं, जिससे उनके लिए सोशियो इकोनॉमिक बेनिफिट्स हैं। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। राइट मैम, थैंक यू मैम। तो जैसे कि आपने बिल्कुल करेक्टली बताया मैम कि ज्यादातर फैमिलीज में ऐसा होता है कि डब्बा खरीद तो लिया बट अब आगे उतना डब्बे फ्रीक्वेंटली नहीं खरीद सकते तो उसको डाइल्यूट करते जाते हैं, पानी का क्वांटिटी बढ़ा दिया, न्यूट्रिशन वैल्यू कम हो गया, तो डेफिनेटली बच्चे के स्वास्थ्य पे उसका असर पड़ता है, बच्चा बीमार ज्यादा पड़ता है, हॉस्पिटल के चक्कर, माओ को काम से ब्रेक लेना पड़ता है, तो बहुत सारे इस तरह के सोशियो इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस हो जाते हैं, जबकि ब्रेस्ट फीडिंग में पूरा फायदा है और इन सारी चीजों से बचाव होता है। मैम एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा इसमें मैम, कैन आई ऐड समथिंग? Yes, sir. Yes, sir. Yes, yes. Yes, मेरा basically around 30 years back I did a house job, 1 year house job in Pedia from Lucknow. So मुझे कई चीजें रिफ्रेश हो गई आज आफ्टर 30 ईयर। 92-93 की बात है मैम। तो हमें बताया जाता था, हमारे प्रोफेसर थे डॉक्टर कपूर, इज नो मोर, बोलते थे डॉक्टर माथुर ये रोटा वायरस की प्रॉब्लम इसी से स्टार्ट हुआ है और जो डिब्बे का मिल्क लेते हैं तो ये लोग प्रॉपर हाइजीन मेंटेन नहीं करते हैं, वो बॉटल जो है लुढ़कती रहती है, गंदी होती रहती है, तो दे आर नॉट मेंटेनिंग। अभी क्या हुआ है कि जब से न्यूक्लियर फैमिली का कॉन्सेप्ट आया है, पहले जब भी घर में रिलेशन होते थे, दादी हैं, बुआ है, तो बच्चा जो है गोदी में रहता था। अब न्यूक्लियर फैमिली हो गई है तो वो हाइजीन भी मेंटेन नहीं होती है। लेकिन गवर्नमेंट ने इसी को प्रमोट करने के लिए अगर मैं देखूं तो जो 6 मंथ की मैटरनिटी लीव है उसका कोई पर्पस है, उसको हम इससे कोरिलेट कर सकते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज गिवन 6 मंथ मैटरनिटी लीव फॉर दिस पर्पस ओनली कि बच्चे की प्रॉपर केयर हो, एक बॉन्डिंग हो और उसको हम यूज करें। लोग उसमें कोताही करते हैं, थोड़ा सा पहले अर्ली ले लेते हैं, जबकि पहले हम प्री डिलीवरी अपनी छुट्टी है वो अवेल करें एंड पोस्ट डिलीवरी गवर्नमेंट देती है या गवर्नमेंट ने इम्पोज किया है प्राइवेट सेक्टर को भी, प्राइवेट लिमिटेड में और कॉर्पोरेट में, कि भाई 6 मंथ आप किसी को डिनाई नहीं कर सकते, छुट्टी देंगे ही देंगे आफ्टर डिलीवरी। तो उसका एक पर्पस है। आई थिंक इसकी अवेयरनेस की आवश्यकता है। जो वर्किंग वुमेन है उनके लिए बात कर रहा हूँ मैं, बाकी जो हाउस वाइफ है वो तो उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वर्किंग वुमेन के लिए भी 6 मंथ का प्रोविजन है कि वो अच्छे से केयर करें और एक बॉन्डिंग डेवलप होगा। Thank you, sir. You are really very aptly you told the importance, और वो भी छुट्टी इसलिए दी है। और अब तो वो हमारा IMS एक्ट भी है जो कि मिल्क सब्स्टिट्यूट्स के लिए बना हुआ है और वो उसके तहत तो हमें 99.9% ही कुछ भी ऊपर के सब्स्टिट्यूट्स नहीं दे सकते, बिकॉज ब्रेस्ट फीडिंग ही दी जाती है स्पेशली इन द फर्स्ट 6 मंथ्स, और वो भी सिर्फ बहुत इमरजेंसी सिचुएशंस में कि कहीं मदर की डेथ हो गई या फिर उसको कोई बहुत ज्यादा सीवियर फॉर्म का HIV है, बस ऐसी कुछ खास सिचुएशंस में दे सकते हैं। और जो डॉक्टर्स प्रमोट करेंगे या वो लोग भी यूज करेंगे तो उसमें पनिशमेंट भी है, 6 मंथ से लेके 3 इयर्स की इम्प्रिजनमेंट भी है और फाइन भी है कैश। तो ये सारी चीजों का ध्यान रखते हुए तभी गवर्नमेंट ने भी इसको ये एक्ट बना दिया, रूल बना दिया कि हम लोग ब्रेस्ट फीडिंग और सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग को ही प्रमोट करें और सपोर्ट करें। और जैसे कि बड़े क्लियरली उन्होंने बताया कि कितने सारे 98,000 करोड़ रुपीस का नुकसान होता है अगर हम ब्रेस्ट फीडिंग ना देके इस तरह की चीजों को, बॉटल फीडिंग को, इन सब को इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमें 100% हर किसी को समझा देना चाहिए, क्योंकि शुरू से में तो कन्वीनियंट लगता है बट अल्टीमेटली इट्स रियली गोइंग टू हार्म एवरीवन, बेबी, मदर एंड कम्युनिटी।
मैम, डू वी हैव एनी फोरम और प्रोजेक्ट जो प्रेग्नेंट वुमेन है उनके लिए अवेयरनेस की बहुत आवश्यकता है, बिकॉज पहले बिल्कुल, बता दिया और या बाद में बताया जो उस क्राइटेरिया में फिट नहीं बैठते हैं, तो वी मस्ट हैव सम प्रोजेक्ट कि जो भी प्रेगनेंसी के दौरान ओपीडी में कहीं भी काउंसलिंग होनी चाहिए उनको। डॉक्टर अर्चला प्लीज आप बताओ, वो सर जो पूछ रहे हैं फोरम के लिए। एक्चुअली इस बात को हमारे हर फोरम में डिस्कस किया जाता है कि स्पेशली प्रेग्नेंट वुमेन जब एएनसी में आती हैं तो उनको ब्रेस्ट फीडिंग के लिए काउंसलिंग दी जाए। एक्चुअली प्राइवेट हॉस्पिटल में तो ब्रेस्ट फीडिंग लैक्टेशनल काउंसलर्स भी होते हैं जो कि एएनसी में पेशेंट पर, पब्लिक हॉस्पिटल में जो हमारा यूजुअल प्ली होता है, भीड़ बहुत ज्यादा है तो नहीं कर पाते। ऐसा होना नहीं चाहिए। यहाँ पे भी हमारे पास एक स्पेशल नर्स, आशा, एएनएम कोई भी होनी चाहिए कि जब पेशेंट लाइन में लगी हुई है उसी समय कुछ प्रोजेक्ट हो रहा हो ब्रेस्ट फीडिंग के एडवांटेज के बारे में, जब वो टेटनस का टीका लगा रही है उस समय वहां कोई बैठा हो, जितनी देर में वो टीका लगवा रही है उतनी देर में उसे कोई बताए। हम कोशिश कर रहे हैं, पर यस आई एग्री विद यू कि ये सब चीजें अभी पब्लिक हॉस्पिटल में इन प्लेस में नहीं है, प्राइवेट में फिर भी इस पे काफी ध्यान दिया जा रहा है। Thank you so much. So breastfeeding is so important. डॉक्टर अमृपाली, आप पूछना चाहेंगे डॉक्टर सुजाता से नेक्स्ट क्वेश्चन? मैम, अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि ब्रेस्ट मिल्क डिलीवरी से लेके आगे 6 महीने, साल, 2 साल तक चेंज होता रहता है। शिशु की क्या आवश्यकता है, उस समय कितना वेट है, उसकी क्या जरूरत है, उसके हिसाब से माँ का शरीर अपने आप ही ब्रेस्ट मिल्क को चेंज करता रहता है, इसकी कॉन्स्टिट्यूएंट्स को और क्वालिटी और क्वांटिटी को भी। तो मैम थोड़ा सा हमें इसके बारे में आप बताएं कि मिल्क किस तरह से स्टार्ट होता है और कैसे कैसे आगे उसमें चेंजेस आते हैं। जी, आपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पूछा है, काफी इंपॉर्टेंट है ये हमारी माताओं के लिए जानना कि जो डिलीवरी के बाद शुरू के 3 या 4 दिन जो पहला दूध निकलता है, जो गाढ़ा पीला दूध होता है, वो बच्चे को देना अत्यंत आवश्यक है, बहुत जरूरी है। इससे जो इसमें तत्व होते हैं, जो एंटीबॉडीज होते हैं, उससे बच्चों को बीमारियों से लड़ने की काफी ताकत मिलती है। और ये देखा गया है, दिस इज रिसर्च प्रूवन, कि जो बच्चे माताओं का दूध पीते हैं, जो कोलेस्ट्रम दिया जाता है, वो बच्चे कम बीमार पड़ते हैं, ज्यादा स्वस्थ होते हैं। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपनी माताओं को ये समझाएं कि जो शुरू का गाढ़ा पीला दूध है वो देना अत्यंत आवश्यक है, बहुत जरूरी है। क्योंकि सिंस वी आर वर्किंग इन दिस हॉस्पिटल फॉर द लास्ट सो मेनी इयर्स, हमारे पास हमारे जो पोस्टनेटल वार्ड में जो डिलीवरी के बाद जो हमारे पास माताएं आती हैं, कई बार ये देखा गया है कि वो जो पहला पीला गाढ़ा दूध है वो नहीं देती हैं, ये समझ के कि ये जो है ये पस आ रहा है हमारे स्तनों से। दिस इज अ मेजर प्रॉब्लम, काफी बड़ी प्रॉब्लम है ये। उन लोगों को एजुकेट हम लोग करते हैं, हमारे पास अलग अलग तरह के जो एजुकेशनल आइटम्स है, जो मटेरियल है, हम डिस्प्ले करते हैं, मरीजों को एक एक माता को समझाया जाता है। हमारे पास कई स्टूडेंट्स भी हैं जिनके थ्रू हम ये मैसेज कन्वे करते हैं, डॉक्टर्स भी कन्वे करते हैं कि जो आम राय है कि ये जो पीला गाढ़ा दूध है शायद हो सकता है पस हो, ये मुझे बच्चे को नहीं देना चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज दिया जाता है कि ये गाढ़ा दूध बच्चे के लिए बहुत जरूरी है। सो ये समझना सभी माताओं के लिए बहुत आवश्यक है। जो शुरू के 3 दिन या 4 दिन दूध दिया जाता है, जो माता का दूध आता है, वो बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो 4 दिन से 10 दिन तक का समय है, उसमें जो है दूध की क्वांटिटी है वो थोड़ी चेंज होती है, जो क्वालिटी है वो चेंज होती है। जो पीला गाढ़ा दूध है वो थोड़ा सफेद दूध की तरफ बदलता है, थोड़ा पतला भी होता है, उसमें प्रोटीन की मात्रा कम होती है, एंटीबॉडीज एंड फैट की मात्रा काफी होती है, जिससे बच्चों को बीमारियों से लड़ने की क्षमता मिलती है। सो ये सभी माताओं के लिए जानना बहुत जरूरी है कि जो दूध की क्वांटिटी एंड क्वालिटी है वो धीरे धीरे बदलती है, आगे भी बदलेगी। और इसके बाद जो हम देखते हैं 2 हफ्ते बाद जो मिल्क है, जो उसकी क्वांटिटी है वो बढ़ती जाती है। शुरू में जो माताएं हैं वो हमारे से शिकायत करती हैं, कंप्लेन करती हैं शुरू में फर्स्ट 1 दिन या 2 दिन कि हम दूध नहीं पिला पा रहे हैं, एस्टैब्लिश नहीं हो पा रहा है लैक्टेशन, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। सो ये सभी उनको समझाने की आवश्यकता है कि बच्चे को सीखने के लिए हो सकता है 24 से 48 घंटे का समय लगे, लेकिन आपने ब्रेस्ट फीडिंग को रोकना नहीं है। उनको ब्रेस्ट फीडिंग को प्रमोट करने के लिए हम जो है सभी माताओं को ये समझाते हैं
कि बच्चे को हर थोड़ी थोड़ी देर में अपने ब्रेस्ट से लगाइए, बच्चा तभी सीखेगा। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो टेक्निक है वो बच्चे को दूध पिलाने की वो भी सही हो। तो इस तरह से जो दूध है, जो उसकी क्वांटिटी है, क्वालिटी है, धीरे धीरे चेंज होती है। और माताओं को ये समझाना बहुत जरूरी है कि जो शुरू के पहले का 2 दिन या 3 दिन का मिल्क है वो पस नहीं है, वो इम्पोर्टेंट, बहुत ही इम्पोर्टेंट मिल्क है, जिसे पीला दूध का, जिसे हम अंग्रेजी में कोलोस्ट्रम भी कहते हैं, वो बच्चे को देना बहुत बहुत जरूरी है। सभी माताओं के लिए समझना अत्यंत आवश्यक है। धन्यवाद। जी मैम, थैंक यू। तो मैम जैसे आपने कहा कि कोलेस्ट्रॉल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और बच्चे को जो भी 2-4 बूंद भी माँ जो प्रोड्यूस कर पा रही है पहले या दूसरे दिन, वो उनको कंटिन्यूअसली देते रहना चाहिए, और ये नहीं सोचना चाहिए कि आ नहीं रहा है, वो धीरे धीरे जैसे बच्चा सक करेगा बढ़ता जाएगा। तो Yes. अनीता मैम, हम आगे इसी चीज पे अब एक बार डिस्कस करेंगे। आप बिल्कुल। डॉक्टर अच्छा बच्चा मैम से डिस्कस करें। या बिल्कुल बिल्कुल। और साथ में ये जो कोलोस्ट्रम है, ये बच्चे की फर्स्ट इम्यूनाइजेशन है, तो ये बहुत जरूरी है कि ये इम्यूनाइजेशन कोलोस्ट्रम देना बहुत जरूरी है। कल हमारा एक फॉक्सी में हो रहा था वेबिनार, तो उसमें डॉक्टर नरेंद्र मल्होत्रा जो हमारे पास प्रेसिडेंट है, उनका लेक्चर था, तो उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से समझाया कि कुछ लोगों में इतने मिथ्स हैं कि वो लोग पहला दूध गाय को दे देते हैं, गाय के बच्चे को या बकरी के बच्चे को, और बकरी के बच्चे को बोलते हैं कि वो माँ का दूध पी जाए 2 दिन ताकि उसका वो साफ हो जाए। तो इतनी सारी भ्रांतियां हैं। कई रिलीजियस हैं, चाहे वो हिंदूज में है, क्रिश्चियंस में है, दे ऑल वेट कि पहले वो बैप्टाइजेशन हो जाए, वो हो जाए, तो उसके बाद स्टार्ट करेंगे, तो वो उतने टाइम में जो मेन इम्यूनाइजेशन है वो आपका लूज हो जाता है। तो आपने बहुत अच्छे ढंग से समझाया डॉक्टर सुजाता कि कोलोस्ट्रम इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड उसके बाद ये दूध देना बहुत जरूरी है। तो नेक्स्ट हम आते हैं डॉक्टर अचला से, क्वेश्चन पूछते हैं जो कि बड़ा इम्पोर्टेंट है, और वो तो बताएंगी अपनी एक पोएम की फॉर्म में भी, जो हम पिछले 1 हफ्ते से चल रहे हैं, ये वेबिनार कर रहे हैं, कभी हम नर्सिंग कॉलेज के साथ, तो कभी औरबिंदो कॉलेज, कभी लेडी इरविन कॉलेज, कभी रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, और आज हम बहुत खुश हैं कि हम अपने सिपाहियों के पास, जवानों के पास ये बात कर रहे हैं। तो डॉक्टर अचला, प्लीज आप बताओ, हाउ डज सक्लिंग इनिशिएट मिल्क सिक्रीशन? जो बच्चा शुरू में सक्लिंग करता है या नहीं करता, तो ये सब क्या है, कैसे होता है ये सब? देखिए, ऐसा है कि जब स्त्री गर्भवती होती है तो 4-5 महीने के बाद ब्रेस्ट में मिल्क बनना शुरू हो जाता है, पर कुछ हार्मोन होते हैं जिसकी वजह से वो बाहर नहीं निकलता, पर उसकी ब्रेस्ट में बन रहा है। और कई औरतें कहती भी हैं कि बच्चा होने से पहले ही थोड़ा मिल्क आ गया, पर इस मिल्क को बाहर निकलने के लिए एक दूसरे हार्मोन की जरूरत होती है, और उस हार्मोन की सिक्रीशन के लिए जब बच्चा माँ के स्तन से सकलिंग करता है, कभी कभी तो बच्चे की रोने की आवाज से भी देयर इज ए कनेक्शन है ब्रेस्ट और ब्रेन के बीच में। बच्चा जब सकल करता है तो ब्रेन से ऑर्डर आता है कि दूध को बाहर निकाल, तो ब्रेस्ट के अंदर जिन थैलियों में दूध है, 7-8 थैलियां गुब्बारे जैसी, जिनके अंदर दूध भरा होता है, और उसके आगे एक टैप है जो कि निपल है, तो उन थैलियों के आसपास की मांसपेशियां कंट्रैक्ट करती हैं और दूध बाहर निकलने लगता है निपल से। तो जितना बच्चा सकल करता है उतना ज्यादा दिमाग पे जाता है कि और दूध बाहर निकालो और दूध बनाओ, और थोड़े दिनों के बाद ऐसा होता है कि दिमाग तक भी जाने की जरूरत नहीं होती है। जैसे ही ब्रेस्ट से दूध निकलता है, ब्रेस्ट के अंदर से ही एक ऑर्डर ब्रेस्ट को ही जाता है अपने आप कि और दूध बाहर निकालो। तो ब्रेन से ऑर्डर आता है पहले इनिशियली, बाद में बच्चा जब भी सक करता है तो ब्रेस्ट को डायरेक्ट ऑर्डर मिलता है कि दूध बाहर निकालो, और ब्रेन को जाता है ऑर्डर कि और मिल्क प्रोड्यूस करो। तो इसलिए बच्चे की सकलिंग एक बहुत जरूरी हिस्सा है, और ये सकलिंग कैसे होनी चाहिए ये भी एक बहुत जरूरी है। अगर ठीक से बच्चा स्तन को नहीं पकड़ता तो माँ को भी प्रॉब्लम हो जाती है, और ये मैसेज जाने में भी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि अगर वो ठीक से नहीं पकड़ता तो माँ को दर्द होती है, तो दर्द भी दिमाग के थ्रू ही आती है। तो जब दर्द आती है तो फिर 2 तरह की कमांड आए तो कंफ्यूज हो जाती है ब्रेस्ट कि दर्द के लिए करूं कि मैं बच्चे की सकलिंग को रिस्पॉन्ड करूं। तो जब दर्द ज्यादा होती है तो फिर दर्द को रिस्पॉन्ड होता है तो दूध नहीं निकलता। तो इसलिए बच्चा कैसे माँ की ब्रेस्ट को पकड़ रहा है ये भी बहुत जरूरी है, ताकि माँ को दर्द ना हो। थैंक यू डॉक्टर अचला, आपने बहुत ही क्लियरली हमें एक्सप्लेन कर दिया, क्योंकि जब माँ तभी तो बोलते हैं कि बच्चे को जैसे ही पैदा हो माँ की छाती के साथ लगाओ ताकि वो अपना सकलिंग स्टार्ट कर दे, क्योंकि वो स्टार्ट करेगा वही चाबी खोलेगा।
एक तरह से ताला लगा हुआ है, तो वो चाबी खोलता है और वहां से फिर दूध आना शुरू हो जाता है धीरे धीरे। सो अभी यही बातें जैसे कि आपने बताई कि पेन वाली बात तो आप बता ही चुके कि पेन होगा तो नेचुरली ये रिफ्लेक्स ऑब्स्ट्रक्ट होगी, कम हो जाएगी। तो और क्या कौन सी बातें अच्छी हैं, जैसे आपने आवाज भी बोली बच्चे के रोने की, तो कौन सी ऐसी चीजें हैं जिससे बच्चे के लिए माँ के स्तन से दूध अच्छे से निकल पाता है और किन परेशानियों की वजह से दूध आना थोड़ा कम हो जाता है, ये भी आप बताइए। हाँ जी हाँ, देखिए एक तो मैंने बोला अगर माँ को पेन होगी क्योंकि बच्चा ठीक, और वैसे भी अगर माँ का ऑपरेशन हुआ है या नीचे टांके लगे हैं उसको पेन है, तो क्योंकि ये जो जैसे आपने कहा चाबी खुल रही है तो चाबी नहीं खुलती, उसमें अटकाव आ जाता है अगर पेन हो, इसलिए माँ को किसी भी तरह की पेन है तो उसको रिलीव करना चाहिए। एक अगर माँ स्ट्रेस्ड है तो वो भी एक रुकावट होती है, वो भी स्टिमुलस ब्रेन को नहीं जाने देती। तो जो माएँ स्ट्रेस रहती हैं या किसी डिप्रेशन में होती है तो उनका भी दूध फिर ठीक से नहीं निकलता, क्योंकि सब कुछ ऊपर से ऑर्डर आ रहा है, तो वो ब्रेन कंफ्यूज हो जाता है, मैं किसकी बात सुनूं, ये दुखी है वो बात सुनूं, उसको दर्द है ये बात सुनूं, कि ये ऑर्डर करूं कि भाई दूध निकालो। तो इस चीजों में कंफ्यूजन होके दूध कम निकलता है। तो माँ को पेन होगी, माँ को स्ट्रेस होगा, माँ को डिप्रेशन होगा, तो इन सब वजह से, या कभी कभी ऐसा भी होता है कुछ ऐसी दवाइयां माँ खा रही है जिसकी वजह से दूध कम आता है, तो वो भी हमें पता होना चाहिए कि कुछ ऐसी दवाइयां तो नहीं वो खा रही। अदरवाइज अगर माँ खुश रहेगी, अच्छी जगह में कंफर्टेबल रहेगी, उसको बैठने में दर्द नहीं है, उसको अच्छे से सहारा लेके बैठी हुई है, हल्का हल्का म्यूजिक चल रहा है, या उसको घर की तरफ से पूरा सपोर्ट है, उसको ये स्ट्रेस नहीं है कि अरे मुझे अभी जाके खाना बनाना है, कोई क्या कहेगा, अगर मैं देर तक बच्चे को दूध पिला रही हूँ तो मुझे सास या मेरे हस्बैंड डांटेंगे, तो इन सब चीजों से स्ट्रेस बढ़ता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि जो माँ बच्चे को दूध पिला रही है उसको खुश रखो, उसको अच्छा पौष्टिक आहार दो, क्योंकि दूध में 80% पानी होता है, तो उसको तरल पदार्थ भी खूब लेने हैं, दूध, पानी, जूस, और उसको पौष्टिक आहार भी देना है, क्योंकि जो वो खाएगी उसी से दूध बनना है। अगर वो खाएगी नहीं तो उसके अपने अंदर की मसल्स यूज होंगी दूध बनाने के लिए, तो वो और कमजोर होती जाएगी। तो एक तो माँ की आहार का ध्यान रखना है, उसकी खुशी का ध्यान रखना है, उसके कंफर्ट का ध्यान रखना है, उसको स्ट्रेस में नहीं रखना, और उसको टाइम स्पेंड कर दे। ये ना माँ को, साथ साथ फैमिलीज को भी, जो जवान हमारी बात सुन रहे हैं उनको समझना चाहिए कि जब माँ बच्चे को दूध पिला रही है वो टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे के लिए, क्योंकि जो बच्चा माँ का दूध पी के बड़ा होगा वो स्वस्थ होगा, ज्यादा समझदार होगा, ताकतवर होगा। तो माँ को बच्चे के साथ टाइम स्पेंड कर देना चाहिए, और उनको ये नहीं सोचना चाहिए कि इतना टाइम बच्चे को दूध को क्यों पिला रही है, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। थैंक यू डॉक्टर अर्चना, बहुत ही अच्छे से आपने समझाया कि अब माँ जिसने स्तनपान बच्चे को कराना है वो हमारे बच्चे के भले के लिए और हमारे सोसाइटी फैमिली के लिए, हमारे देश के लिए, तो उस माँ का उस समय, हमारे तो सिपाही वैसे ही भारत माँ का हमेशा ध्यान देते हैं, तो ये तो बहुत ही आवश्यक है कि स्तनपान जब औरत करा रही है, माँ करा रही है, तो उनको बहुत ही अच्छा एटमॉस्फेयर, बड़ा ही हैप्पी एटमॉस्फेयर, खुशी का होना चाहिए। इसीलिए हमारी ये ब्रेस्ट फीडिंग वीक सेलिब्रेट यही कर रहे हैं कि हमें ब्रेस्ट फीडिंग को सपोर्ट करना है और प्रमोट करना है। इसलिए माँ को सपोर्ट करना बहुत जरूरी है, ताकि ना उसको कोई फिक्र हो, ना चिंता हो, और इतनी खुश हो कि उसकी दर्द भी उस खुशी में लुप्त हो जाए, और उसके कोई डाउट्स भी ना, उसको पता हो जो भी आसपास के लोग हैं उसको भोजन में भी कैलोरीज भी 500 कैलोरीज एक्स्ट्रा मिलेंगी, कम से कम 500 550 कैलोरीज जब माँ स्तनपान कराती है तो एक्स्ट्रा होनी चाहिए, क्योंकि वो कैलोरीज से ही बच्चे का वो दूध की फॉर्म में बच्चे को मिलेगा, तो ताकि माँ का अपनी सेहत भी कमजोर ना हो और साथ में बच्चे के लिए भी स्तनपान अच्छे से मेंटेन हो पाए। तो माँ को जैसे मैम ने बोला बहुत पौष्टिक भोजन, बैलेंस फूड देना बहुत जरूरी है, रेनबो डाइट देना, वही डाइट देनी है जो हम सब खाते हैं, बट एक्स्ट्रा उसमें 550 कैलोरीज एक्स्ट्रा हो जानी चाहिए। So thank you so much for making it very clear and giving this message that mothers will be happy, then the babies will be happy and our whole nation will be happy. So आगे बढ़ते हैं और मैं अब रिक्वेस्ट करूंगी हमारी सोल्जर डॉक्टर अम्रपाली को कि आप अब अगले क्वेश्चन पूछिए। मैम, बच्चे को ठीक से दूध मिले उसके लिए जरूरी है कि उसकी लैचिंग ठीक हो, उसको ठीक पोजीशन में माँ पकड़ के दूध पिलाए जिससे माँ भी कंफर्टेबल फील करे,
ब्रेस्ट फीडिंग के समय और बच्चा भी ठीक से सक कर पाए। तो बहुत सारे वेरियस पोजीशंस हैं जो माएँ यूज कर सकती हैं अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से। तो मैं डॉक्टर सुजाता मैम से रिक्वेस्ट करूंगी कि मैम आप थोड़ा सा एलैबोरेट करें कि क्या क्या पोजीशंस में माएँ कंफर्टेबली दूध पिला सकती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये एक बहुत ही अच्छा सवाल है हमारी माताओं के लिए, जो अपने नवजात शिशुओं को किस तरह से दूध पिलाना है, क्या पोजीशंस होनी चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो सबसे पहली पोजीशन है वो है क्रेडल होल्ड पोजीशन। इसमें जो माता है वो अपने शिशु के शरीर को अपने बाजू पे इस तरह से सपोर्ट करती है कि बच्चे का सिर जो है वो स्टेबल रहे, बच्चे का जो शरीर है वो स्टेबल रहे, और बच्चे को अपने स्तन से लगाना है इस तरह से कि केवल निपल का जो हिस्सा है वो नवजात शिशु के मुंह में ना जाए, उसके आसपास का जो काला हिस्सा है जिसे हम एरियोला कहते हैं वो भी नवजात शिशु के मुंह में जाए ताकि वो ठीक से दूध को सक कर सके। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है जो हम अपने माताओं को अपने वार्ड्स में अपने पेशेंट्स को देते हैं। इसके अलावा एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो है हमारी साइडलाइन पोजीशन। जो माताएं बैठ के, जिनका ऑपरेशन हुआ है, सिजेरियन हुआ है, जो ठीक से पूरी तरह बैठ के पहले या दूसरे दिन नहीं पिला सकती, उनके लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है ये वाली पोजीशन की साइडलाइन पोजीशन पे, जहां बच्चे को कंधे अपने बाजू पे माता स्टेबलाइज करती हैं और बच्चे को स्तन से लगाया जाता है और दूध पिलाया जाता है। तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट जरूरी चीज है जो मैं यहाँ बताना चाहूंगी कि जिन माताओं के जुड़वा बच्चे हैं वो एक साथ अपने दोनों बच्चों को दूध पिला सकती हैं, जिसे फुटबॉल होल्डिंग पोजीशन कहा जाता है। दोनों हाथों में जो माता है अपने बच्चों को, शिशुओं को लेकर अपनी ब्रेस्ट से लगा सकती हैं, जिनसे दोनों बच्चे एक साथ माता का दूध ले सकते हैं। इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। सो दिस इज इम्पोर्टेंट। सभी माताओं को ये समझाना जरूरी है कि क्या अलग अलग पोजीशंस हैं और किस तरह से आप इन पोजीशंस को समझ के अपने बच्चों को सही प्रकार से दूध पिला सकते हैं, क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डिलीवरी के बाद होता ये है कि हमारी माताओं को अटैचमेंट, लैचिंग, इन सब के बारे में पता नहीं होता। कैसे स्तन से लगाना है, कितना दूध पिलाना है, कितने समय तक पिलाना है, कितनी बार पिलाना है। और ये मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आप सभी से, सभी पार्टिसिपेंट्स से शेयर कर रही हूँ कि हमने अपने वार्ड्स में 2-1 बार ऐसा भी देखा है कि बच्चे को अनार का जूस दे दिया जाता है या बच्चे को चाय दे दी जाती है चम्मच के द्वारा। ये एक बहुत ही खतरनाक प्रैक्टिस है, एक बहुत ही खतरनाक प्रैक्टिस है। बच्चों की को कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं जिनसे उनकी तबीयत खराब हो सकती है, उनकी जान भी जा सकती है। सो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमने और भी देखी है कि बच्चों को शुरू में 2 दिन तक कुछ दिया ही नहीं जाता, माता अपना दूध नहीं पिलाती है। उनके कई रिलीजियस बिलीव्स है जिनकी वजह से या कुछ प्रॉब्लम जो है वो फेस कर रही है ब्रेस्ट फीडिंग में। सो ये सारी इंफॉर्मेशन बहुत जरूरी है कि बच्चे को कैसे छाती से लगाना है, किस तरह दूध पिलाना है, कितनी बार पिलाना है और इससे क्या फायदे हैं माता को और शिशु को। बहुत बहुत धन्यवाद। जी मैम, थैंक यू। तो जैसे कि मैम आपने बहुत अच्छे से बताया कि जो भी पोजीशन मदर को कन्वीनियंट हो वो पिला सकती हैं। इसमें ध्यान देने की जरूरत ये भी है, जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया, कि ये जरूरी है कि मदर एक कंफर्टेबल पोजीशन में पहले खुद बैठे। यदि वो बिल्कुल सीधा या बहुत झुक के अकड़ के बैठे रहेंगी तो वो ज्यादा देर दूध नहीं पिला पाएंगी, खुद ही टायर्ड फील होंगी या दर्द होगा तो ऑटोमेटिकली बच्चा भी अफेक्ट होगा। तो पहले जरूरी है कि माँ खुद कंफर्टेबली पोजीशन थोड़ा सा पीछे सहारा लेके पिलो वगैरह से प्रॉपर होगी अच्छे से बैठे। फिर बेबी को जो भी उनकी प्रेफर्ड पोजीशन है उसमें अच्छे से होल्ड करें, बच्चे का नेक, बॉडी पूरा उनके एल्बो और हाथ पे अच्छे से सपोर्टेड रहे और फिर वो उसको प्रॉपर तरीके से लैच कराए। तो जैसा कि हम इस पिक्चर में देख पा रहे हैं कि अटैचमेंट बच्चे का अच्छे से होना बहुत जरूरी है। यदि पुअर अटैचमेंट होता है तो ना सिर्फ बच्चे का सकिंग वेस्ट होता है, उसका एफर्ट लगता है पर उसे दूध नहीं मिलता, साथ ही साथ निपल में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने के रिस्क है, सोर्स हो जाते हैं, कट्स हो जाते हैं, तो आगे भी मदर उसको अच्छे से फीड नहीं करा सकती है। तो इसलिए गुड अटैचमेंट हो उसके लिए बहुत जरूरी है कि अच्छे से पोजीशन समझ के मदर उसको होल्ड करें और फिर आगे उसको फीड कराएं। तो पोजीशन से आगे बढ़ते हैं, हम डिस्कशन को आगे ले जाते हैं। सो डॉक्टर अनीता मैम, आप डिस्कशन को प्लीज आगे कंटिन्यू करें और हम आगे डिस्कस करते हैं जो भी हमारे फर्दर कंसर्न्स हैं। Right. Thank you so much. Dr. Anita, good morning. Dr. Shanta here.
Oh, Dr. Shantha. Hi, Dr. Achla. Welcome, Hello, welcome. good to Thank see you you. so much, our President Foxy is here. We are really grateful and such a surprise that you have come. Thank you so much. Dr. Vivek Mathur is the DIG over here, official Deputy Inspector General, and you know, for our national security guards and in this composite hospital. So Dr. Vivek Mathur, we welcome Dr. Shantha Kumari here. She has specially joined to be with the Jawans from Yes, Hyderabad. welcome, ma'am. Yes. Namaste, sir. I just wanted to join and say hello to all of you and wishes from Foxy. I think Dr. Anita, Dr. Achla are doing a great job. We believe in promoting exclusive breastfeeding for all babies, which is their life, right? And the first 6 months of exclusive breastfeeding followed by breastfeeding up to 2 years. And I think it's definitely the slogan, protect breastfeeding, shared responsibility, I think is everyone's responsibility. And thank you for taking this program across to reach all the mothers in our country and the babies. Thank you. All the best, Dr. Anita and the whole team. Thank you, Dr. Shantha. We are really privileged to have you with us. Thank you for having me. And Dr. Shantha will be just displaying your video also, because this is such a strength to all of us. And Dr. Achla tells me that every time we have the program, you must display this video. It's so good. Thank so, you. we have it with us. And after this, because then, you know, it strengthens everybody that whatever we have said, you are telling the same thing. So people really feel good about it. Yeah, So thank you so much. Thank you Thank so you much. very much, ma'am. Thank you very much. Thank you, Dr. Dr. Sujata and Sujata. everyone. And Dr. bye. I'm in Pune. Amrapali is also here. Dr. Amrapali is also our Foxian only. And you know something, she's Dr. Aparna Sharma's sister-in-law. She was our speaker yesterday, Aparna Sharma. Okay, that's nice. So, yeah. Thank you so much. Thank you very much, so ma'am, much. for being here. Thank you. Namaste. Bye. Thank you, ma'am. Thank you so much. And so we will go on with our next slides, because this is something very important slide, which I always want Dr. Achla Batra to speak on this, because this is a very great message. And especially, see, our president also was here, and our main issue should be that everybody, it's not that only the women of the family, like that is why today we have Dr. Vivek Mathur sitting right through all the time with us, because the men of the family and the women of the family, everybody must participate in this breastfeeding policy and support, so that we can nicely send the message to everybody. Because even all the boys, all the girls, all the men, all the women, again, ultimately their foundation of life has come through this breastfeeding only. So we all don't have to feel shy or feel, you know, hesitant in talking about it. Rather, it's something which has given strength to everybody, each human being. So all human beings, whether men or women, they all have to support it. So I shall request now Dr. Achla Batra ma'am to please tell us what are the actual breastfeeding recommendations, how we should go about following them. Dr. Achla, please. आई थिंक हम इसके बारे में शुरू से बात कर ही रहे हैं कि जैसे ही बच्चा पैदा हो, एकदम से 1 घंटे के अंदर उसको माँ का दूध हमें जरूर पिलाना है। उससे एक तो ये होगा, बॉन्डिंग बढ़ती है जिंदगी भर की। दूसरा है कि जो ब्रेन को स्टिमुलेशन जाना है सकलिंग से, वो भी शुरू हो जाता है जल्दी। तीसरा, वो जो कोलोस्ट्रम जिसको अनीता ने बोला, बच्चे का पहला इम्यूनाइजेशन, वो भी बच्चे को मिल जाता है। तो सबसे पहले तो 1 घंटे के अंदर ही बच्चे को हमें दूध पिला देना है। दूसरा, पहले 6 महीने बच्चे को दूध के अलावा, माँ के दूध के अलावा कुछ भी और नहीं देना। पानी भी नहीं देना, जो शहद हम चटाते हैं वो भी नहीं देना, कुछ भी नहीं देना। माँ के दूध के अंदर इनफ पानी होता है। हाँ, कुछ कभी ड्रॉप्स, या कुछ बच्चे को एनीमिया हो तो आयरन ड्रॉप्स या विटामिन ड्रॉप्स, वो भी अगर हम आयरन की ड्रॉप चाहे देनी पड़े। विटामिन डी की ड्रॉप तो ये कहा गया है कि माँ को दे दो विटामिन डी, बच्चे को मिल जाएगी। अदरवाइज दूध के अलावा कुछ नहीं पिलाना 6 महीने। 6 महीने के बाद ये जरूरी है कि उसको दूसरी चीजें ऊपर से दी जाए। बंगाली में एक बहुत अच्छा सा कस्टम है, वो अन्नप्राशन कहते हैं, जो कि 6 महीने के बाद वो बच्चे को कुछ और चीजें शुरू करते हैं, और उससे पहले बच्चे को कुछ नहीं दिया जाता। तो हमारे इंडिया में ये कस्टम बहुत पहले से ही बने हुए हैं। और 6 महीने से लेके 1 साल तक ये जरूरी है कि माँ का दूध भी पिलाएं साथ में, और दूसरी चीजें भी पिलाएं। 1 साल के बाद
हम तो ये कहते हैं कि 2 साल तक जरूर माँ बच्चे को दूध पिलाए, तो फिर भी 1 साल के बाद माँ डिसीजन ले सकती है अगर उसको कुछ प्रॉब्लम है, नहीं पिलाना चाहती कुछ मजबूरी की वजह से, तो ठीक है। अदरवाइज बेस्ट है कि 2 साल तक वो माँ का दूध भी पिए और 6 महीने के बाद दूसरे ऊपर की चीजें साथ में ऐड की। थैंक यू मैम डॉक्टर अचला, बहुत ही आपने हमें करेक्ट इन्फॉर्मेशन दी है कि जो कि पूरा हमारा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यूनिसेफ सब हमें यही बता रहे हैं कि हमें बच्चे को तुरंत माँ की छाती के साथ लगाना है, पैदा होते ही कोशिश करो 5 मिनट्स के अंदर ही, पर ज्यादा से ज्यादा 1 घंटे के अंदर तो डाल ही देना चाहिए ताकि बच्चे को तुरंत सारा दूध मिलना शुरू हो जाए। और एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग 6 महीने तक बिल्कुल, कि और कुछ देना नहीं, पानी भी नहीं देना, कुछ भी नहीं, जैसे आपने बताया। और इसके अलावा 6 महीने के बाद भी माँ अपना दूध पिलाए 2 साल तक या इवन मोर। और पर उस समय 6 महीने का जब बच्चा हो जाता है तो कुछ तो और भी तत्व चाहिए होते हैं, और भी कैलोरीज चाहिए, तो इसके लिए फिर एडिशनल जो कॉम्प्लीमेंट्री फूड्स हैं वो बच्चे को हम धीरे धीरे ऐड करते हैं, पहले सेमी सॉलिड, उसके बाद सॉलिड। और 1 साल का बच्चा तो माँ के साथ थाली में बैठ के पूरा खाना खा लेता है। तो इस तरह से हमारा हेल्दी बच्चा बन जाता है। तो ये हमारी रिकमेंडेशंस, ये तो हमारी रिकमेंडेशंस WHO ने दिया, पर हमारे वेदों में भी यही लिखा हुआ है। हमारे वेद भी यही बताते हैं कि मिल्क एंड ब्रेस्ट आर सिंबॉलिक ऑफ लॉन्गेविटी एंड नेक्टराइन स्वीटनेस। In fact, the breast has been conceived as a pitcher full of nectar. तो ये वो अमृत है जो हमारी डॉक्टर अचला वो पोएम भी गाती हैं अमृत के बारे में, तो वो भी मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगी कि वो भी हमें वो थोड़ी पोएम की लाइंस भी सुनाएं। डॉक्टर अचला, अगर वो पोएम आप बोले तो उसके बाद हम अगला क्वेश्चन डॉक्टर अचला, डॉक्टर सुजाता और डॉक्टर आम्रपाली के बीच रखेंगे। छोटी सी 4 लाइनें हैं, एक बच्चे की क्या अभिलाषा होती है। मेरी अभिलाषा है कि मैं पैदा होते ही माँ के स्तन से लगवाया जाऊं। मेरी अभिलाषा है मुझे नानी दादी बुआ से ना मिलाओ, मुझे मत नहलाओ, मुझे माँ के स्तन से लगाओ। मेरा पेट बहुत छोटा है, एक चेरी जितना, और कोलेस्ट्रॉल भी थोड़ा है, मुझे इस अमृत से वंचित ना करो। मेरी ये अभिलाषा है, पैदा होते ही मुझे माँ के स्तन से लगाओ। वेरी गुड, वेरी गुड, थैंक यू सो मच। इससे इतना आनंद मिलता है, कितना अच्छा लगता है कि हमें लगता है जितनी भी माताएं बहनें सुन रही होंगी या इवन ऑल मेन हमारी कंट्री के, तो वो सबको लगेगा कि कितना अच्छा है ये माँ का दूध देना और वो कितना हमें फायदे देने वाला है। सो इसके अलावा आजकल और भी कुछ कंसर्न्स चल रहे हैं क्योंकि हम कोविड फेज से निकल रहे हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी डॉक्टर आम्रपाली को, डॉक्टर विवेक माथुर भी उनको सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो कुछ प्रश्न पूछें कोविड के बारे में, क्योंकि सफदरजंग तो वैसे ही कोविड हॉस्पिटल रहा है, तो और भी डॉक्टर अचला भी सफदरजंग में है, तो इनको तो बहुत नॉलेज है इसकी, तो आप लोगों के कुछ भ्रम हैं वो क्लियर कीजिए ये क्वेश्चन पूछकर। तो आजकल मैम कोविड तो बिना कोविड के तो कोई डिस्कशन आजकल पूरा होता ही नहीं इनफैक्ट। तो हमारी सारी ब्रेस्ट फीडिंग माताओं में ये क्वेश्चन रोज हम सुनते हैं कि मैम हम बच्चे को दूध पिला रहे हैं तो क्या हम वैक्सीन लगवाएं, या अगर हमने वैक्सीन लगवा ली तो हम कब तक बच्चे को दूध पिलाना बंद रखेंगे। तो बहुत सारी माताओं को इस चीज को लेके कुछ डर है, गलतफहमियां हैं। तो हम डॉक्टर सुजाता मैम आपसे पूछना चाहेंगे कि वैक्सीनेशन और ब्रेस्ट फीडिंग के बीच में क्या संबंध है, और क्या हमारी स्तनपान करने वाली माताएं वैक्सीनेशन ले सकती हैं या नहीं लेना चाहिए? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है ये, जो हमारे जो कोविड पैंडेमिक का टाइम था, जो हमारा पीक था, जो हमारा जो कोविड सेगमेंट था जिसमें काफी पेशेंट्स होते थे, ये एक बहुत बड़ा कंसर्न था उनके लिए। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के गाइडलाइंस बहुत ही क्लियर है, अगर कोविड-19 इन्फेक्शन का शक है माता के लिए या कंफर्म्ड केस है, ऐसे स्थिति में माता को जारी रखना है शिशु को दूध पिलाने के लिए, क्योंकि जो उसके बेनिफिट्स है, जो फायदे हैं स्तनपान के, वो बहुत ज्यादा हैं और जो रिस्क है वो बहुत कम है। हाँ, जो प्रोटेक्शन है, जो पर्सनल प्रोटेक्शन है, वो माता को डेफिनेटली लेना है ताकि ये इन्फेक्शन जो है वो आगे ना बढ़े, बट जो ब्रेस्ट फीडिंग है, जो स्तनपान है, वो जारी रखना चाहिए। एक ये बहुत बड़ा कंसर्न है जो
आज से कुछ महीनों पहले तक हमारी माताओं में ये होता था कि हम दूध ना पिलाएं, इन्फेक्शन हो जाएगा, ऐसी कोई स्थिति नहीं है। दूसरी बात ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो वैक्सीनेशन है जिसके बारे में आपने बात की। वैक्सीनेशन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की क्लियर कट गाइडलाइंस हैं कि वैक्सीनेशन प्रेगनेंसी के दौरान भी किया जा सकता है, लैक्टेशन के दौरान भी किया जा सकता है, ताकि जो है प्रोटेक्शन जो है माता को इन्फेक्शन से मिले, बट ब्रेस्ट फीडिंग कंटिन्यू रखनी है। जो स्तनपान है उसे रोकना नहीं है, माता को अपने शिशु को दूध देना ही है। ये एक बहुत ही क्लियर मैसेज मैं इस प्लेटफॉर्म से आज हमारे सभी पार्टिसिपेंट्स को देना चाहूंगी। इसके अलावा एडिशनल कंसर्न्स और भी हैं, बहुत सारे कंसर्न्स हैं, लाइक अगर किसी कोई मदर है जो वर्किंग है, जो अपने बच्चे को रेगुलरली 8 से 10 बार पूरे दिन भर में दूध पिला सकती हैं, ऐसी माताएं जो हैं जो ब्रेस्ट पंप का इस्तेमाल कर सकती हैं। ब्रेस्ट मिल्क को एक्सप्रेस किया जा सकता है, उसे एक साफ कटोरी में रख के फ्रिज में रखा जा सकता है और इस मिल्क को बच्चे को दिया जा सकता है। हाँ, हमें ये ध्यान रखना है कि इस मिल्क को 1 घंटे पहले हम निकाल दें फ्रिज से, ताकि उसका तापमान सही हो जाए और बच्चे को दिया जा सके। इसके अलावा एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट कंसर्न है उन बच्चों के लिए जो बीमारी का शिकार हो जाते हैं किसी भी वजह से, और उनके माता पिता अगर उन्हें चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पास ले जाते हैं तो कुछ मेडिकेशन दिया जाता है। तो वो जो मेडिसिन हैं वो बच्चे को दी जा सकती हैं फर्स्ट 6 मंथ्स में भी। जैसा हम कहते हैं कि चाइल्ड स्पेशलिस्ट की रिकमेंडेशन पे उनकी जो ट्रीटमेंट है, हाँ डेफिनेटली दिया जा सकता है जो ट्रीटमेंट है बच्चे को, लेकिन ब्रेस्ट मिल्क जो है वो बच्चे को डेफिनेटली देना है, स्तनपान जारी रखना है। तो ये इंपॉर्टेंट, एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसर्न है, एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है कि अगर चाइल्ड स्पेशलिस्ट की सलाह पे बच्चे को मेडिसिन दी जानी चाहिए तो वो दी जा सकती है। इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो मैंने पहले भी शेयर किया कि कई माताएं जो हैं जो बाहर का दूध है वो पिला देती हैं, गाय का दूध है, कुछ एक बार तो हमने अपने वार्ड्स में भी देखा है कि हमारी बिना इंफॉर्मेशन के माताएं अपने बच्चों को चाय दे रही हैं या जूस दे रही हैं। एक बहुत बड़ा कंसर्न है, उनको एजुकेशन की जरूरत है और रेगुलरली एजुकेशनल प्रोग्राम्स हमारे वार्ड्स में, हमारे ओपीडीज में कंडक्ट किए जाते हैं। इसके अलावा एक बहुत बड़ा कंसर्न है जो हम एडिशनल कंसर्न्स में भी ले सकते हैं कि अगर स्तनों में भारीपन आ गया है, भराव है, तो ऐसी स्थिति में दूध पिलाना चाहिए या नहीं। डेफिनेटली जो स्तनपान है वो जारी रखना चाहिए। इसके साथ ही जो है जो हम कहते हैं वार्म कंप्रेसेस, जो माताओं को समझाना चाहिए कि कुछ गर्म पानी में किसी तौलिए को भिगो के अपने स्तनों पे लगाइए। कुछ हल्की फुल्की मेडिकेशंस हैं जैसे ब्रूफिन है और क्रोसिन वगैरह की मेडिसिन है वो दी जा सकती है, जिससे जो दर्द है उसमें काफी कमी आती है। तो ये सारी चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो हमें मैसेजेस हैं जो अपनी माताओं तक कन्वे करना है। इसके अलावा कई बार जो है वो जो दूध की गांठ है वो इतनी बड़ी हो जाती है कि पस में कन्वर्ट हो जाती है, जिसे हम ब्रेस्ट एब्सिस कहते हैं। ऐसी स्थिति में जी हाँ ट्रीटमेंट है, जिसको हम जो एब्सिस है उसको साफ किया जा सकता है, चीरा लगा के माताओं को कुछ एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं, बट इसके साथ ही माता दूसरे स्तन से दूध जो स्तनपान है वो जारी रख सकती हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमें इस प्लेटफॉर्म के थ्रू आज अपने पार्टिसिपेंट्स को, अपनी माताओं को समझाना होता है। जो इंपॉर्टेंट ब्रेस्ट फीडिंग है जो आइडियली होनी चाहिए वो 8 से 10 बार है, दिन भर में 2 से 3 बार है, रात में, जिसे हम एडिक्वेट ब्रेस्ट फीडिंग कहते हैं। इसके साथ ही अगर बच्चा 6 से 8 बार यूरिन पास कर रहा है, अपना डायपर गीला कर रहा है और उसका वजन जो है वो सही तरीके से बढ़ रहा है, जिसकी जानकारी जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट है, हमारे पीडियाट्रिशियंस हैं, माताओं को देते हैं, हम भी उन्हें देते हैं। अगर वजन जो है ठीक प्रकार से बढ़ रहा है तो माताओं को इस बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि मेरा दूध जो है वो कम है, बच्चे के लिए सफिशिएंट नहीं है। ऐसी स्थिति में आप ये समझ लें कि बच्चे को सफिशिएंट मिल्क मिल रहा है क्योंकि बच्चे का वजन सही ढंग से बढ़ रहा है। सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज जो हम आज यहाँ कन्वे करना चाहते हैं अपनी माताओं को। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू डॉक्टर सुजाता। डॉक्टर आम्रपाली, आपकी कमेंट्स। अनम्यूट कर लीजिए डॉक्टर आम्रपाली, अनम्यूट योरसेल्फ। या ठीक है, यस। सो डॉक्टर सुजाता मैम ने बहुत हमारे सारे कंसर्न्स को बहुत अच्छे से एड्रेस किया। थोड़ा ऊंचा बोलो। सारी चीजें मैम ने क्लियर की हैं। जैसे कि मैं हमेशा अपने पेशेंट्स को मैं भी बोलती हूँ कि व्हेनेवर इन डाउट ब्रेस्ट फीड, क्योंकि ज्यादातर केसेस में ब्रेस्ट फीड कराना बेहतर है बजाय ब्रेस्ट फीड अवॉइड करने के। और ज्यादातर केसेस में हम
कोई बीमारी है मदर को, जैसे भी हम कोविड की बात कर रहे हैं या वैक्सीनेशन का इशू है या कोई भी मेडिसिन ले रहे हैं, ज्यादातर केसेस में उन चीजों के बावजूद भी ब्रेस्ट फीड कराना पूरी तरह सेफ है और फॉर्मूला मिल्क देने की बजाय हर तरह से बेहतर है। सो ब्रेस्ट फीड हम करा सकते हैं इन सारी चीजों में, कोविड वैक्सीनेशन के साथ भी, बीमारियों के साथ भी। और क्या क्या ध्यान रखना है, एब्सेसिस में क्या करना है, गांठें बन जाए, वो सारी चीजें डॉक्टर सुजाता मैम ने ऑलरेडी बहुत अच्छे से हाईलाइट कर दी है। तो आई थिंक हम अब अपने सेशन के एंड की तरफ पहुंच गए हैं। तो डॉक्टर अनीता मैम से मैं हाँ। फिर से रिक्वेस्ट करूंगी कि मैम इस लास्ट पॉइंट को थोड़ा और अच्छे से डिस्कस करें कि ब्रेस्ट फीडिंग को हम किस तरह Yes. से ज्यादा एक्सेप्टेबल बनाएं, एंड वी हैव टू फील प्राउड अबाउट द फैक्ट कि हम अपने बिल्कुल। बच्चों को खिला सकते हैं। एब्सोल्युटली थैंक यू डॉक्टर अम्रपाली। और आई थिंक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमने कही, क्योंकि हमने ब्रेस्ट फीडिंग को सपोर्ट करना है, प्रमोट करना है, तो इवन फॉर द वर्किंग वुमेन, अभी बहुत सारी हमारी वुमेन वर्किंग भी हैं, तो उनको भी बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं। जैसे कि बताया गया कि एक्सप्रेस मिल्क को हम लोग स्टोर करके रख सकते हैं, तो रूम टेम्परेचर पे ये 4 घंटे के लिए हम बड़े आराम से स्टोर कर सकते हैं। ये हमारी CDC गाइडलाइंस है। और अगर हम उसको रेफ्रिजरेटर में स्टोर करें तो 4 दिन के लिए हम लोग बड़े आराम से दूध को, माँ के दूध को स्टोर कर सकते हैं। और फ्रीजर के अंदर तो हम लोग 6 महीने तक बहुत ही अच्छे ढंग से उसको स्टोर करके रख सकते हैं, इवन अप टू 1 ईयर। बट बोलते हैं कि 6 महीने तक तो बेस्ट रहता है, और उसको फिर हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसलिए जो मदर्स को लगता है कि बाहर भी चली गई कुछ भी, तो ये हमारे पास सारी उपलब्धियां हैं, एज पर द गाइडलाइंस। सो अल्टीमेटली वही है कि जो गाइडलाइंस है हमारी वही कहती है कि बच्चे को तुरंत पैदा होते ही, बल्कि माँ को ड्यूरिंग एंटीनेटल पीरियड, मैं तो सोचती हूँ कि इवन जब पढ़ रही हैं भावी माएँ, जैसे कि गर्ल्स यंग हैं, एडोलेसेंट में है, कॉलेजेस में है, उस समय भी उनकी ये एक तरह की पढ़ाई होनी चाहिए, ताकि उनको पता हो कि उनको कल जब माँ बनेंगी तो ब्रेस्ट फीड करना है। तो अगर पहले से ही हमारी प्राइमिंग होगी, हमें अवेयरनेस होगी, हमें इसकी नॉलेज होगी, तो उस समय जब सिर पे आएगी तो हमें कोई चीज मुश्किल नहीं लगेगी और हम उसको जल्दी से इम्बाइब कर लेंगे। तो इसलिए एटलीस्ट जब एंटीनेटल पीरियड में वुमेन होती हैं, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उनको पहले से बताया जाए। वैसे भी हम लोग ब्रेस्ट चेकअप करके देखते हैं कि ब्रेस्ट एक्टिव हो गई कि नहीं। तो यूजुअली हमारा होता है कि 16 वीक्स के बाद 20 वीक्स के अराउंड ब्रेस्ट एक्टिव होनी चाहिए। तो तभी से उसको समझा देना चाहिए अबाउट द निपल, कि वो अंदर को ना मुड़े, बाहर की तरफ हो। फिर उसको हर वक्त ब्रेस्ट को सपोर्ट करके रखना चाहिए, ब्रेजियर पहन के रखनी चाहिए, उससे भी कोई एनगॉजमेंट वगैरह नहीं होती और बाद में दूध पिलाने में आसानी रहती है। तो ये सारी बातें अगर शुरू से उनको पता रहेंगी और वो बच्चे के पैदा होते ही, जैसे कि डॉक्टर अचला मैम ने बोला कि 1 घंटे के अंदर भी क्या, विद इन फ्यू मिनट्स ही स्टार्ट कर दो, मैक्सिमम 1 आवर, और उसके बाद 6 महीने तक लगातार बच्चे को स्तनपान कराओ, एक्सक्लूसिव कराओ, बच्चे को पानी नहीं देना, कोई गुट्टी नहीं देनी, ये मैसेज आना चाहिए। कोई भी और चीज, डॉक्टर सुजाता ने बोला जूस देना नहीं देना, सिर्फ माँ का दूध, उसमें सब कुछ है, उसमें पानी भी है, दवाइयां भी हैं, सारी एनर्जी है, सब कुछ है, और उसकी वैक्सीन भी है उसके अंदर। और उसके बाद फिर बच्चे को 6 महीने के बाद माँ के दूध के अलावा और भी चीजें दें, और उसके बाद 2 साल, मोर देन 2 इयर्स तक माँ दूध पिला सकती है। तो इसके साथ ही मुझे लगता है कि हम अगर ये सारा मैसेज जो आज हमें मिला है, हमें कुछ भी समझ आई है, तो आगे देंगे तो बहुत इससे हमें लाभ होगा। तो डॉक्टर अचला बत्रा मैम से मैं बोलूंगी कि वो अब इसको सम अप करें, मैम एक चीज में ताकि हम अब इस प्रोग्राम को फिनिश कर सके। और डॉक्टर विवेक का भी मैं चाहूंगी कि वो क्या कहना चाहेंगे। डॉक्टर विवेक पहले आप बोलिए। मैम डॉक्टर अचला मैम ने जो अभी बहुत बढ़िया पोएम सुनाई है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो हमें शेयर करें, और मैं उसको जो है हेडिंग दे करके, नवजात शिशु की चाहत, मैं हेडिंग दे करके उसको डिस्प्ले कराऊंगा अपने ओपीडी में, नंबर 1। दूसरा, जो आपके इम्पोर्टेंट ये आपने स्लाइड्स दी हैं और ये डॉक्टर अम्रपाली के थ्रू मिल जाएंगी, तो हमारा पेशेंट का वेटिंग लॉन्च है यहाँ पर, उसमें मैं इसको डिस्प्ले रखूंगा रेगुलर। पेशेंट आते हैं, वेट करते हैं, तो पेशेंट भी एबल इसको बाइलिंगुअल करके इंग्लिश में, हिंदी में मैं इसको वेटिंग वाले एरिया में चलवाऊंगा, नंबर 1 मैम। बाकी मैम मेरा बड़ा लंबा एसोसिएशन रहा है, मुझे याद आता है 8-10 साल पहले मैं BHU गया था मैम, आप लोगों का एक एनुअल ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस थी, उसमें मैं बुलाया गया था एज ए गेस्ट फैकल्टी, फीमेल एथलेटिक ट्रायड, एज ए स्पोर्ट्स डॉक्टर मैंने लेक्चर लिया था वहाँ पर, मेरा एक प्रेजेंटेशन था फीमेल एथलेटिक ट्रायड।
मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मैंने फर्स्ट टाइम अटेंड किया, मुझे लगता है इंडिया में जो आपकी एसोसिएशन है, सोसाइटी है गायनी की, वो सबसे बड़ी है। मुझे लगा कुंभ का मेला है वो। इतना बड़ा मैंने कोई भी रेडियोलॉजिस्ट, ऑर्थोपेडिशियन, सर्जन कहीं नहीं देखा है जितना गायनी का देखा। वो कुंभ का मेला लगा मुझे। दैट वाज द फर्स्ट एक्सपीरियंस मैम। बाकी मैं जुड़ा हुआ हूँ मैम। आई एम, यू मस्ट बी नोइंग, जानते होंगे आप, एक लखनऊ में है प्रोफेसर अमिता पांडे। शी इज माय बैचमेट। मैम अगर जानते हो केजीएमसी में प्रोफेसर अमिता पांडे हैं, वो काफी एक्टिव है ईस्टर्न यूपी में, एंड विद वुमेन हेल्थ को लेकर के काफी एनजीओ में लगी हुई हैं प्रोफेसर अमिता पांडे केजीएमसी। तो मैं चाहूंगा जैसे थोड़ा कोविड ठीक होता है मैम, तो एनएसजी में आपका एक बहुत अच्छा मैंने प्रोग्राम करवाना है आप लोगों के थ्रू। तो डॉक्टर आम्रपाली से रिक्वेस्ट करूंगा जैसे ही कोविड थोड़ा सा ठीक होता है, विल हैव सम रेलेवेंट टॉपिक and we will have some physical one-to-one program, not webinar, ma'am. That's all, ma'am. Definitely, Dr. Vivek. We are already doing many webinars on the subjects which are important to public, to women, because we are not able to go there physically. But definitely, we would love to associate with you for doing anything you want us to do for the women, any public forum, any information which you want, especially like we have done for cervical cancer, a very big drive with Dr. Manu. So we can do for other things also. Whatever you say, we'll do, because this is our mandate for our daily society, that we are going to reach out to women, not only just teach doctors, but reach out to the public and make them aware of their health needs. So that's really great that you have yourself proposed that you would want us to do it. So we will definitely do it. And I think we've had a very good discussion on the importance of, हमने बहुत अच्छा बातचीत की कि ब्रेस्ट फीडिंग की क्या इम्पोर्टेंस है, और मैं आशा करती हूँ कि हमारे इस डिस्कशन के बाद सबको पता चला होगा कि ये कितना इम्पोर्टेंट पार्ट है। किसी को शर्माना नहीं चाहिए ब्रेस्ट फीडिंग करने के लिए। अगर उन्हें करना है, किसी भी जगह जाके कह के जाओ कि मैं ब्रेस्ट फीडिंग करने जा रही हूँ। वर्क प्लेस पे हो, नहीं जा सकते हो तो एक सिक्योर्टेड जगह में जाके आप अपना ब्रेस्ट मिल्क एक साफ बर्तन में निकाल के वही घर ले जाओ। घर जाके थोड़े आराम कर रहे हो तो बच्चे को वो भी पिला सकते हो। तो ब्रेस्ट फीडिंग एक वुमन का अधिकार है, ये उसका कर्तव्य है, क्योंकि एक हेल्दी नेशन, एक स्ट्रॉन्ग नेशन बनने के लिए स्ट्रॉन्ग बच्चे चाहिए। बच्चे स्ट्रॉन्ग है, वही बड़े होके एक स्ट्रॉन्ग नेशन बनाएंगे, और बच्चों को स्ट्रॉन्ग होने के लिए माँ के दूध की बहुत जरूरत है। तो आई होप ये मैसेज सबको पहुंचे और सब इसको करने में खुश होएं, और ये ना सोचें कि कुछ फिगर खराब होगा। कुछ नहीं होता, बल्कि फिगर अच्छा ही होता है। तो यही हमारी सबको एक मैसेज है कि ब्रेस्ट फीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके लिए भी, आपके बच्चे के लिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर अचला। और अभी चलते चलते हम मैम, हमारी देखो प्रेसिडेंट, शी टेक सो मच इंटरेस्ट कि वो भी खुद आ गए, आज सरप्राइज दे दिया हमें। शी इज सो बिजी। तो बट अभी हम उनका वीडियो देखेंगे, क्योंकि उन्होंने स्पेशली मैसेज हम सबके लिए बनाया है, और जो हमने डिस्कस किया है आपको भी लगेगा कि मैडम भी हमें वही बात कह रही हैं। तो मिस्टर शिवम, आई विल रिक्वेस्ट यू टू प्ले द वीडियो, ताकि चलते चलते हम सबको थैंक्स करने से पहले वीडियो दिखा दें। डॉक्टर ज्योत्सना सूर्य has joined. Dr. Jyotsna has also joined. अरे वाओ, डॉक्टर ज्योत्सना वेलकम। डॉक्टर ज्योत्सना, आपको मैं देख नहीं पा रही। Oh yes, Dr. Jyotsna, our Vice President of AOGD, has also joined. I'm so happy. Lot of senior doctors, Dr. Savita Puri, who has been the president of DMA, Dr. Usha Rana, a very senior doctor, Dr. Deepa Agarwal, lot of people have joined. I'm really thankful to all of you, Dr. Uma Pasi. And so that really shows, you know, everybody is supporting this program, each one of you. डॉक्टर ज्योत्सना, अभी आप प्लीज आ जाइए, हम तब तक फिर वीडियो दिखा लेते हैं। तो प्लीज ऑल ऑफ यू आल्सो से फ्यू वर्ड्स। Dear friends and Foxians, greetings from Foxy. We come to you with the theme Foxy for all always and Dhira Stop Violence Against Women. The World Breastfeeding Week is celebrated from the 1st to 7th of August every year. And this year, they come with the theme Protect Breastfeeding, a Shared Responsibility. Foxy stands for all mothers and newborns. Foxy celebrating
the World Breastfeeding Week, and we urge all members to participate in this initiative. Data says that India is lowest among the South Asian countries. Only 44% of our mothers initiate breastfeeding within 1 hour of delivery. And it's our responsibility to see that we increase this number of women who breastfeed their babies immediately after delivery. And WHO has identified that poor infant feeding practices contribute to the neonatal death. And this is something which we have to look into. Friends, when you see the data, almost 53% of pneumonia and 55% of the diarrheal deaths among the neonates are because of the poor breastfeeding habits and where the baby is not being exclusively breastfed. So we urge everyone to see that the mother gives exclusive breastfeeding for the first 6 months of the life and continues the breastfeeding for almost 2 years. This is the only way we can ensure that the neonatal health is maintained. Friends, breastfeeding is not only important for the baby but for the mother also. We know it contributes to the mother to get back into shape. It has a role as a contraceptive and has been shown to reduce the risks of some of the cancers too. It is an emotional connect which bonds the mother and the baby, and it's a beautiful experience which we all have to nurture. Friends, we always tell our mothers that they need to take care of the babies, but it is not only the mother's responsibility, it's the responsibility of the whole family, the whole society to ensure that the mother is given the support needed to ensure safe breastfeeding to her baby. So friends, I urge you all to increase the awareness programs in your hospitals, in your societies, and send across the message that we need to protect breastfeeding as it is a shared responsibility of every one of us, doctors, healthcare providers, the families, and the society at large. Let's get together and see that we provide a safe environment for the mother to breastfeed her baby. And this is the way we can show that we can take care of our baby. Thank you very much. And we are looking forward for your positive support for doing this activity in the coming week from 1st to 7th of August. See you and hope that we get to hear the wonderful programs which you have conducted for this initiative. Thank you. Thank you so much. I think we are really thankful to Dr. Shanta ma'am, and I'm sure सब लोग agree करेंगे कि जो हमने discuss किया वही उन्होंने अभी अपने समक में भी बताया. So I think अब हमें अच्छे से रट भी गया है कि breast feeding में हमें क्या-क्या सावधानियां लेनी है और कब start करना है. So अभी हमारे साथ बहुत लोग जुड़े हुए हैं. मैं सोच रही थी अगर डॉक्टर ज्योत्सना सूरी अपने आप को डॉक्टर मिस्टर शिवम डॉक्टर ज्योत्सना सूरी नहीं आ सकते हमारे साथ. Yeah, Dr. Jyotsna is joining. Yeah, yes. Hello. Hi, Dr. Jyotsna. हाँ, hello. Yes, thanks for joining. Yeah. आप कहेंगे because she is the vice president of our Association of Obstetricians and Gynecologists of Delhi, and also a great human being. बहुत काम करते हैं. देखो अपने आप से she has joined us to be part of this good cause. So Dr. Jyotsna, please. Yeah, so it is a really a pleasure and a privilege for me to, give this message to all the people who are logged in today about breastfeeding. I think जितना भी हम इसके बारे में बात करें वो कम है, because there are so many benefits and we just can't presume कि we all work so hard for a positive pregnancy experience, positive birth experience. But postpartum, I think, is something which we take for granted कि ये तो एक चीज है जो mothers करेंगी ही करेंगी. तो I think कि that is all our duty, that we all healthcare workers at every level have to support the breastfeeding initiative. We have to make sure that our patients initiate the breastfeeding in time. Antenatally, we have to start the preparation. And I think the benefits of breastfeeding are so many that, if it is practiced
the way it is supposed to be, then it can make a big difference in the perinatal mortality, in the neonatal mortality, even in the under 5 mortalities. And for our mothers, it can be so beneficial. There are so many things that it, protects the mother from the weight gain after delivery. It helps her to lose weight. It gives a natural contraception, and it also protects her from postpartum depression and that unique bonding. So I think there are so many benefits that I really feel that this program was a very much needed program. And Dr. Anita, thank you as always for taking the initiative to be part of this wonderful program. That's all I would like to say. Thank you. Thank you so much, Dr. Jyotna. It's really a great encouragement. And I think, whenever we all are like family and friends and without fear, so in that friendly atmosphere, one can do anything. So even for this breastfeeding, if for the mother, she has a very friendly atmosphere and everybody supports her, I think she will be able to really do it. And Yes, especially all of I us think, together. yeah, for her. I think it is very important that she should have the confidence that she can Yes. do it, because it is at that moment when she delivers, and especially a young mother who is a para 1 primary para, she doesn't have confidence, that her breast milk is enough. It is all the time, confusion from everywhere. Everyone will give advice to her, and she, is very confused that why is the baby crying? Is my breast milk not enough? Is my breast milk good for my baby? So there are so many doubts, and if we give the confidence to that young girl, she can go a long way. So it is, as you said, the task is not just for healthcare workers, it is for every member of the family to support that young mother so that she doesn't lose confidence and start giving the top feeds to the baby. And she should have the confidence and the faith that she can look after her baby with her breast milk. It can thrive. So I think it is a really big challenge, and the whole society needs to be part of this. It is not just the healthcare workers. So that is why it is so important to propagate this message. And this week, I think it gives us an opportunity to think about these things and to hold such programs. I'm sure they make an impact on all of us. Thank you. Thank you so much. Very encouraging words. And I'm sure Dr. Lalit Mathur, who is sitting here, he gave us the opportunity along with Dr. Amrapali to be here with the public, because ultimately we have to connect to the public, and Yes. AOGD's outreach team is just bent upon doing it throughout the year. So now again, I think once this thing is over, we shall be ready for our other program. So thank you so much. Would you like to say something, Dr. Vivek, before we end? Thank you, ma'am. Thank you. Dhanyavad. Thank you so much. Thank you, Thank you. everyone. Thank you, each and every one of you. Especially Dr. Jyotna, who just now joined us, Dr. Shanta Kumari, our president, Foxy, who came for this program, Dr. Archana Verma, Vice President, Foxy. Of course, Dr. Achla Batra, our President, AOGD, is my family all the time. I just considered I'm part of her only, and Dr. Sujata. So it's like that, friends add humor, fascination, and beauty to life. And today we've added more friends to our basket. So we are really happy so that this message now goes to hundreds and thousands of people across. So that will really give us more happiness. And this program would be there on our YouTube of AOGD events. So if people want to see it later, they can see it. We will, you can, Amrapali, if you want, you can go to AOGD event YouTube, and then this program would be there for you to see, or for anybody else. You can broadcast for all your soldiers again and their families. Dr. Usha Raina was also here. Thank you, ma'am, for joining. Great senior faculty today has joined us. So thank you so much for your guidance and support. So thank you so much, and wishing you all a very, Thank you very happy much. Independence Day. Yes, Dr. Sujata, you are part of our family. Thank you. Yes, so ma'am. Thank you very much for inviting us here. Such a wonderful panel, and you organized it so well.
lot of information given on this platform and मुझे पूरी उम्मीद है इससे सभी को बहुत फायदा होने वाला है and इसको अगर सभी लोग देखेंगे तो definitely हमारी जो माताएं हैं और जो बाकी उनके परिवारजन हैं उनको सभी को बहुत सारी information मिलेगी. Thank you very much. Thank you so much. Thank you very much and happy Independence Day in advance. Bye-bye. Happy. Bye. Bye-bye.